Good morning, all of you. This is the second video of your chapter 4 of your history book, and the topic was the first cities. In the previous video, we had the introductions about the cities and the establishments, how by the age of the Chalcolithic age, people started living a settled and arranged life, and the different kind of occupations were there. लोग किस तरह ट्रेडिंग करना उन्होंने शुरू की, किस तरह मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी उन लोगों ने अरेंज करने लगी, वो इकट्ठा करने लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच कम्युनिकेशन और इंटरेक्शंस बढ़े बिकॉज दे वर लिविंग बाय द रिवर बैंक्स, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसान हो गया था. एंड ऑल दीज थिंग्स अबाउट द सिविलाइजेशंस वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. So here in this video we will discuss about the Indus Valley civilization. Okay, the Indus Valley civilization is one of the oldest seats of human civilizations, and it's in the Indian subcontinent. The Indus Valley civilization flourished between 3000 to 1500 BC, and you can refer to the timeline given at the top of the page in your book, that is page number 30, and I have asked you to do that in your copy also. Okay, so it flourished between 3000 to 1500 BC in the valley of the Indus River and its tributaries. जो Indus River और उसकी tributaries ने मिलके जो valleys थी, उसी के river banks पे, उसी के alongside ये पूरा civilization flourish किया था. And this collectively, the whole civilization which is along the river banks of Indus and the tributaries is collectively known as the Indus Valley civilization. This civilization was remarkable, expensive, very much impressive, and in the sense of all the extent, the size, the planning, and the system, everything. So in this video, we will discuss how the system was there and how the things were managed. As much we know, because the language or the things which we have got in written or the inscriptions there are not yet deciphered. अगर वो decipher हो पाए तो शायद हम और भी ज़्यादा उन civilizations के बारे में जान पाएंगे. So let us start with the town planning. Okay, the town planning was very unique in the features. जो टाउन प्लानिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दैट वाज रियली यूनिक, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसने हजारों साल पहले इस तरह की टेक्निक्स को यूज करना, इट मीन्स इट वाज टोटली एन अर्बन सेटलमेंट एंड वेरी मच टेक्नोलॉजिकली दे वर sound enough to do the things in that way which they have done. The houses were built of burnt bricks. जो घर थे वो burnt bricks के बने हुए मिले हैं, and they were constructed on both the sides of the road. कुछ घर ऐसे भी मिले हैं which have only 1 or 2 rooms while the others have more, and that indicates the different living quarters for the rich and the poor. कि जो rich थे वो थोड़े बड़े घरों में रहते होंगे, poor थे उनके घर थोड़े छोटे थे. So all these things ये बताता है कि वहाँ क्लास डिवीजन भी किस तरह था, सोशली भी लोग किस तरह से रहते थे, कितने डिवीजन्स थे. द एंट्रेंस टू द हाउसेज वर ओपन विद द साइड एलिस एंड नॉट द मेन स्ट्रीट. जो एंट्रेंस था या जो विंडोज हुआ करते थे घर के, वो साइड में हुआ करते थे, किनारे के रास्तों में होते थे, न कि मेन स्ट्रीट पे कभी भी खुलते हुए मिले हैं. ओके, एक और जो चीज़ है, दैट इज the division of the city. Okay, the city is divided into 2 parts. The Harappan cities are divided into 2 parts. The first one is citadel. You can see here that first picture, and the second one is of the lower town. Citadel जो था वो एक थोड़ा ऐसा पार्ट था which was raised above the ground around 30 to 50 feet. वो उतना ऊपर होता था ग्राउंड से, and it said that the rich, the wealthy ones or the administrative heads were residing there. वो लोग वहाँ रहते थे और वहाँ से पूरे शहर को कंट्रोल करते थे. The citadels are on the western side of the cities and the lower towns are on the eastern side. Okay, ये सिटिडल जो था, यहाँ पे और भी दूसरे बड़े बड़े इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स मिले हैं, लाइक द ग्रेनरीज, द टाउन हॉल, ऑल दे आर इन द सिटिडल्स. जो टाउन हॉल है सिटिडल का इन मोहनजोदाड़ो, दैट इज
that was probably used as an auditorium or a prayer hall. कुछ इस तरह की पब्लिक मीटिंग्स के लिए, या हो सकता है जो राजा होंगे, जो हेड होंगे, वो उन्हें पब्लिक मीटिंग्स के लिए यूज करते होंगे. And all the pillars of that citadel are very much arranged in a proper way. They are perfect in the counts in each row. The ruling class was probably living in the citadels, और जो ये lower town है वहाँ rest of the city के लोग रहते होंगे, the common ones. Okay, now let us see the drainage system. This is the drains in Harappa. The drainage system was very well developed. The sewage system was very well developed there. जितने भी drains थे, they had covered with large brick slabs. बड़े बड़े slabs थे, जो अभी आप सीमेंट के slabs देखते होंगे ना, वैसे स्लैब्स उस समय के बने होते थे, और वो ब्रिक स्लैब्स होते थे. उनसे वो सारे जो ड्रेन्स हैं वो कवर्ड मिले हैं. और क्योंकि वो पूरी तरह से कवर्ड हैं, तो कुछ कुछ दूरी पर थोड़े थोड़े इरेगुलर इंटरवल्स पे एक खाली जगह छोड़ दिया गया है. वो भी मोस्ट प्रोबेबली ढका ही होता होगा रेस्ट ऑफ द टाइम, और उनमें से अंदर जाके लोग सफाई करते होंगे. दैट वाज फॉर द क्लीनिंग. और जितने भी घरों के अंदर जो स्पेस मिला है, एक तो सब कुछ परफेक्टली प्लान था, और जो प्लानिंग थी वो पूरे शहर के लिए एक जैसी थी. ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह दूसरे तरह के घर हैं, दूसरी जगह दूसरी तरह के घर हैं. नो, इट वाज ऑल लाइक द सेम. तो जो घरों के भी बाथरूम से पानी निकलता था, ऑल द वाटर वाज ड्रेन्ड आउटसाइड इन द मेन सीवर्स थ्रू द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम. पूरे शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, इसलिए ऊपर कहीं कोई गंदगी होती ही नहीं थी. इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था कि सफाई रहे. और इट वाज, वी कैन से दैट इट वाज वेरी वेल प्लान्ड, अ परफेक्ट डिजाइन, अ परफेक्ट सिस्टम. और कई जगह ऐसे भी एविडेंस मिले हैं जहाँ पे रोड के चौराहों पे या डिफरेंट प्लेसेस पे डस्टबिन भी के जैसे भी चीज मिली है, कि जितनी भी गंदगी थी वो ये ध्यान रखा जाता था कि वो डस्टबिन में ही डाले जाएं. और द पोल्स वर देयर, जहाँ हो सकता है कि शाम के वक्त लाइट्स या मशाल वगैरह जलाए जाते होंगे. So they were very well planned. जो streets थे they were very wide. और जो सबसे बड़ी बात है, उस समय की भी पढ़ाई और उस समय के लोगों की सोच, their advancement towards the technologies, that all the streets or the roads are cutting each other at a right angle. सभी एक दूसरे को एक right angle पे आकर के और cross करते हैं. So we can say that they were very much advanced, very much technologically developed. It was an urban settlement. Here you can see in this picture, it's the Great Bath. ये भी जो structure है, this was also a part of the citadel. ये भी citadel area में ही मिला है, and it's a large structure जो कि मोहनजोदाड़ो में अनर्थ किया गया है. आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे मोहनजोदाड़ो में निकाला है और इसे नाम दिया गया ग्रेट बाथ, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली वाटर स्टोरेज के लिए ही यूज किया जाता होगा, जहाँ लोग नहाने और दूसरे काम करने आते होंगे. सो इट वाज मेड ऑफ ब्रिक्स. ये सभी तरफ से ब्रिक से बना हुआ है, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है, और इसके दोनों तरफ स्टेयर्स हैं नीचे की तरफ उतरने के लिए. एंड इट वाज प्लास्टर्ड. ये जैसे अभी हम लोग सीमेंट वगैरह से प्लास्टर करते हैं, इट वाज प्लास्टर्ड विद अ नेचुरल टार विच वाज कॉल्ड द बिटुमेन. ओके, एंड ड्यू टू दैट बिटुमेन, उस टार के कारण जो ये पूरा ग्रेट बाथ का एरिया था वो वाटर टाइट हो जाता था. देयर वाज नॉट अ सिंगल पॉसिबिलिटी ऑफ द सीपेज. कहीं से भी पानी निकल नहीं सकता था. सो इट वाज वेरी वेल प्लान्ड. और इसके चारों तरफ रूम्स बने हुए थे, सो दैट जब लोग यहाँ से नहा करके निकलें तो उन रूम्स में चेंज कर सके. इट माइट हैव बीन यूज्ड फॉर सर्टेन फेस्टिवल्स और द रिचुअल्स, या किसी त्योहार में या बड़े बड़े ओकेजन्स पे इन्हें यूज किया जाता होगा, जब लोग कलेक्टिवली यहाँ जुटते होंगे किसी खास अवसर पे नहाने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए. ओके, एंड द अनदर थिंग, the another important building there is the granary. Okay, granaries are the largest building found at मोहनजोदाड़ो. ये सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक है जो मिला है मोहनजोदाड़ो में. It's you can see the size here. It's running 150 feet long, 75 feet wide, and 15 feet high, and it's divided into 27 compartments in 3 rows. Okay,
ये भी बर्न्ड ब्रिक से ही बना हुआ है। मतलब लोग जिस तरह हम लोग आज जली हुई पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, वो उतने हजारों साल भी पहले लोग इसी तरह के ब्रिक्स यूज करते थे। ओके, एंड दिस वाज यूज्ड फॉर द ग्रेन्स। यहाँ ग्रेन्स को थ्रैश किया जाता था और उनसे ग्रेन्स अलग करके रॉ रफ में जो भी निकलता था उसे अलग करते थे और फिर उन्हें स्टोर किया जाता था। ये जो रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हैं, दीज प्लेटफॉर्म, दे वर यूज्ड फॉर थ्रैशिंग द ग्रेन। और ये इतने एविडेंटली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी क्रैक्स मिले हैं इन सभी ब्रिक्स के बीच में, उनमें से ग्रेन्स मिले हैं, व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड। सो दे हैव सेड कि दिस वाज द प्लेटफॉर्म वेयर द ग्रेन्स वर thrashed. These are the structures. You can see the well here. ये जो स्ट्रक्चर है ये एक वेल है। दिस इज द वेल इन मोहनजोदाड़ो, जो अक्सर हर घर में मिलता था। वहाँ वाटर सप्लाई बहुत ही सफिशिएंट थी। ऑब्वियसली वाटर वाज प्लेंटी देयर क्योंकि एक तो वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अलोंग द रिवर बैंक था। इट वाज द रिवर साइड ऑफ द इंडस, एंड देन जो वाटर लेवल था वो हमेशा बहुत ही ज्यादा मेंटेन रहता था। इट वाज अ वेरी रिच एंड फर्टाइल लैंड क्योंकि जो भी फर्टाइल सॉइल रिवर्स अपने साथ कैरी करके लाती थी वो इधर आकर के और लैंड में चेंज हो जाता था। तो यहाँ बहुत तरह के वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते थे। दिस द वेल वी हैव सीन, दिस इज द प्राइवेट वन काइंड ऑफ थिंग जो किसी के घर में है, एंड दिस इज द पब्लिक वेल। ओके, पब्लिक वेल ऑफ हड़प्पा ये आमतौर पे सार्वजनिक रूप से यूज किया जाता होगा, जहाँ सभी लोग इकट्ठा होते होंगे कपड़े वगैरह धोने के लिए या नहाने के लिए। जैसा अभी भी आप लोग देख सकते हैं, जो वॉशरमैन है वो कपड़े धोने के लिए किसी एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, वो कोई वेल हो या रिवर साइड हो। तो उसी तरह से इस प्लेस को भी यूज किया जाता होगा फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स और बाथिंग एंड डिफरेंट थिंग्स। दिस इज अ बाथरूम, यहाँ भी आप देख सकते हो ये ड्रेनेज सिस्टम है इसका। तो हर घर बहुत ही परफेक्टली प्लान था, सबका ड्रेनेज सिस्टम, द स्ट्रीट, द वेल्स, द ग्रीनरीज, एवरीथिंग वाज डन परफेक्टली देयर। ओके, नाउ द सोशल लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो भी वहाँ से एक्सकेवेशंस मिले हैं, द ruins and the various evidence of Harappa and Mohenjo-daro, they reveal that there was the social and economic life of the people of Indus Valley civilization. जो भी वहाँ से skulls, bones, statues या स्ट्रक्चर्स मिले हैं वो ये बताते हैं कि जो क्लास था, जो सोसाइटी थी, वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड थी। कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे, द लर्नेड वंस, देन द वॉरियर्स जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जा सकता है, फिर ट्रेडर्स थे जो बिजनेस करते थे, एंड द आर्टिजन्स जो छोटे मोटे आर्ट क्राफ्ट इन चीजों में काम में लगे रहते थे, एंड द लोअर क्लास ऑल्सो जो इन सभी लोगों के लिए काम करते थे, लाइक द लेबरर्स, ओके, मैनुअल लेबरर्स और द वर्किंग क्लास। जो लर्नेड क्लास था, दैट इंक्लूडेड द प्रीस्ट जो पुजारी होते होंगे, जो पढ़े लिखे लोग, फिजिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स, ये लर्नेड क्लास था। और ये बताता है कि कुछ जगहों पे ऐसे भी फाउंडेशंस मिले हैं एक्सकवेशंस में जहाँ से सोर्ड्स, वॉचमैन्स क्वार्टर्स एंड एंशिएंट फोर्ट वॉल्स, ये सब कुछ बताता है कि उस समय लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए भी काम करते थे, बाहर से या दूसरों के आक्रमण से भी बचना चाहते थे। तो देयर वाज अ क्लास ऑफ वॉरियर्स ऑल्सो जिन्हें क्षत्रिय कहते हैं और जो अपने राजा के लिए और अपने पूरी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते होंगे। ओके, एंड द ट्रेड वाज आल्सो देयर, बहुत तरह की ट्रेडिंग होती थी। एक द ब्रोंज इमेज ऑफ अ डांसिंग गर्ल इज आल्सो फाउंड। यू कैन सी दैट इन योर बुक, द पिक्चर इज गिवन देयर। इट शोज कि वहाँ के लोग बहुत ही वेल क्राफ्ट्समैन भी थे, बहुत ही अच्छे अच्छे वो लोग स्ट्रक्चर्स और पॉटरीज और ज्वेलरीज वगैरह भी बनाते थे। सो all these shows that it was an urban settlement, very highly developed, and they were very good ones in the sense of technology, learning, the systems and everything. Okay, then about the domestication of animals or the farming, उन लोगों ने खेती करनी शुरू की थी। दैट्स हाउ द सिविलाइजेशन स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ पीपल स्टार्टेड लिविंग अ सेटल लाइफ। और जो हड़प्पन सिटीज थे, एक तो रिवर बैंक्स के पास होने के कारण और द वैली ऑफ द
Indus and the tributaries was there, जिसके कारण वहाँ अक्सर फ्लड आता रहता था, बाढ़ आती रहती थी। तो जो भी सिल्ट था वो डिपॉजिट होता जाता था वो आसपास के एरिया में, जो भी फर्टाइल सॉइल होता था, जिसके कारण वहाँ का लैंड जो था वो बहुत फर्टाइल हो गया था और बहुत तरह के एग्रीकल्चर वहाँ पे किए जा सकते थे ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन, द wheat, barley, cotton, maize, millet, ये सब वहाँ ग्रो किए जाते थे। एंड people domesticated the animals also. They domesticated humped bulls, buffalo, sheep, pig, dog, elephant. ये सभी एनिमल्स को उन लोगों ने डोमेस्टिकेट भी करना शुरू किया। एंड द हॉर्स वॉज अननोन टू देम। हॉर्स के बारे में एविडेंस कहीं नहीं मिला है कि वो हॉर्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे, उसे यूज में लाते थे या नहीं लाते थे। सो देयर इज नॉट एनी सर्टेन evidence about the horse. Okay, so it was not domesticated. They used carts in which bullock were used. Carts, गाड़ियाँ बनाई जाती थी, bullock carts थे, बैलगाड़ियाँ जो हम लोग अभी भी देखते हैं कई जगहों पे। And they had learned the benefit of domesticating animals, कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं एनिमल को डोमेस्टिकेट करने से, ये सब उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था। एंड इट इज एविडेंट टू द पीपल वर फेमिलियर टू वाइल्ड एनिमल्स, और ये भी पता है कि उन्हें ये फर्क भी मालूम था कि कौन से एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जा सकते हैं और कौन से वाइल्ड एनिमल्स थे। दे वर नोइंग द डिफरेंस वेरी वेल, क्योंकि वो शुरू से ही हंटर गैदरर और इकट्ठा करने वाली स्थिति रही। दे वर नोइंग दैट व्हेन दे गो टू द फॉरेस्ट तो उसमें कौन सा जानवर कितना डेंजरस है उनके लिए, ये चीजें उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। सो दिस is all about the farming, rearing of cattle, the political and social life, the granaries and the town planning. In the next video, we will discuss about the trade, the potteries, the religious belief, and the decline also. Okay, so in the next video, we will finish this chapter. You read it thoroughly and try to do the exercises. Okay, thank you.